हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस सेशन में मेरी बात हो रही है प्रांजल महाजन से, जो कि गेट 2021 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 25 लाए हैं। प्रांजल, एक्सर्जिक के कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड थे आप? I was enrolled in two courses, that Learn Combo and Solve Combo, in which study material, video course, test series, question. In short, all Everything the was there. courses. Basically, all the Yeah, courses yeah, of Exergic you enrolled for, and you get a great rank, yeah. all India rank 25, right? तो Yes, sir. आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ से बीटेक कंप्लीट की, ये कौन सा अटेम्प्ट था, इसके बारे में थोड़ा बात Okay. कीजिए। So basically, I am right now. I'm in Khandwa. ओके, Uh, did the preparation here itself, ओके, and I'm 2019 pass out from Birla ऑलराइट, Institute of Technology, Mesra, Ranchi. ओके, This was my third attempt. ओके, First was in the final year. Uh, then the second attempt in 2020 was with job. ओके, Parallel to job, I'd given that, but that was not serious. ओके, But at that time, I was sure that with the job, I cannot crack the gate exam. ओके, So I left. I left the job, ऑलराइट, and at that time, I enrolled in Exergic, ओके। and So this now was I your am here. first serious attempt for GATE, we can say. Yes, sir. Yes, sir. This It was your was serious first attempt. serious attempt. ओके, ओके, Yes, ओके। sir. तो इसमें आप क्योंकि आपने एक आप आइडिया दीजिए, आपने किस मंथ में एनरोल किया था एक्सर्जिक के कोर्स में? जुलाई के एंड में, सर। जुलाई के एंड में, जुलाई 2020 के एंड जुलाई में, के स्टार्टिंग में। जुलाई के जुलाई के स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कर लिया, सर। यस, सर। ओके, ओके, ओके। तो वो जो टाइम आपके पास था, जुलाई के स्टार्टिंग से लेके गेट तक का टाइम, उसमें आपने यस, सर। कैसे प्लान किया एक्सर्जिक के वीडियो कोर्स को कि कैसे किस रेट पे मैं कंप्लीट करूं? जो स्टडी का शेड्यूल दिया था हमने, वो फॉलो किया क्या? और क्योंकि आपके पास स्टडी मटेरियल भी साथ में था वीडियो कोर्स के साथ, हाँ, तो दोनों प्लस को स्टडी सिंक मटेरियल। कैसे किया? दोनों की स्टडी को सिंक कैसे किया? उस हाँ, बारे में थोड़ा बताओ, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? यस, सर। सो I think actually I like everything in order. So ओके, before enrolling in course, I was sure that till the month of October I have to complete the course, ओके, and after that revision should be there and all the test series, mock test, because in the last two attempts this was missing. Test series and mock test attempts were missing. So I was sure that I have to give most of my time to the revision. राइट, So when I enrolled in June end, so till I think October end, I was successfully able to complete the course, video course. Then from November to mid December, I did the full revision again of video lecture notes which I have made in between. And after that, that gear up started, all the FLTs started. So in I think mid January, I completed that all. ऑलराइट, ऑलराइट। सो यू केप्ट दिस इन Okay. अ सीक्वेंस, that video course study Yeah, yeah, yeah. material I will complete first, then I will start revising and test series. Yes, sir. In revision also, I did all the question bank and topic wise test, subject wise test, everything at the time Okay, only. okay, During okay. video lectures, I completed all the practice quiz which were in at the end of the lectures what were there. Right, right. So those questions you did, the questions in the video course, that you did while video Yes, sir. course only, but test series you did not write at that time. No, no, sir. Question At the bank end. also you did not write at that time. No, sir. At the time of revision and parallelly doing this test questions All right. So question bank and test series you did in the end, right? in the end. Yes, sir. In the end you did. Okay. And Yes, what sir. about notes making? Notes making, what was your method of making notes from the lectures? Yes, sir. The strategy, basically there are two strategy for me. First is that the study preparation strategy. I had made I think four copies I have made. One is for video lecture. One is, as you said, sir, about the numerical copy where you write down all the All numerical the points, learnings from the numerical, right? learnings from the numerical points. Then one is for at the end for all the subject wise test and topic wise test series, question bank, and at the end one is only for FLTs. सर तो स्टार्टिंग में ही सर जब पहले मुश्किल से मेरे ख्याल से आई स्टार्टेड विद सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सो स्टार्टिंग के 10 या 15 लेक्चर में ही मुझे समझ में आ गया था कि जो इसके
वीडियो लेक्चर की सीरीज होने वाली है, दिस इज गोइंग टू टेक मी टू अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल। मतलब कॉन्सेप्ट्स इतने मतलब क्रिस्टल क्लियर हो रहे थे, एंड आई वाज एबल टू कनेक्ट ऑल द मिसिंग लिंक्स व्हिच वर फ्रॉम बीटेक आई टुक। There were so much missing links, like what is theory, practical application, so all that links were connected by your video lectures. So that was one point. And the advices which you gave in between the lecture, in lectures the advices were there. So sir, I made a note of that and posted it in front of me. So that was reminding all the time all the advices, like in lectures also, like जी की वैल्यू कितना रखना है, 9.8 10। तो ये सब सर मतलब दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ ही गया था। मतलब अब जब भी क्वेश्चन करो तो इसमें दिमाग नहीं जाता कि यूनिट सही रखनी है नहीं रखनी, वो अपने आप हो जाता है। बस तुम हम्म। क्वेश्चन पे फोकस करो, हो जाएगा बाकी। सर इतना हो गया था कि हाँ, सर ने इतना डाल दिया था अंदर कि हाँ भाई, अब तो क्वेश्चन ही करना है बस, बाकी तो सिली मिस्टेक अब नहीं होगी, ऐसा। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। यस सर। एंड द अबाउट द सर ऑल द set of questions which are there from different like practice quiz, I would deduce that आपको उसमें सिर्फ ये क्लियर करवाना है कि फॉर्मूले जो हैं डिराइव कैसे हुए हैं, कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है। तो उस चीज में सिर्फ उसी में मैंने ध्यान दिया, उसमें सिली मिस्टेक्स का ऐसा कुछ वो नहीं था कि सिली मिस्टेक पे ध्यान देना नहीं देना। फिर उसके बाद सर लाइव प्रैक्टिस सेशन में आपने ऐसा किया कि इन 30 मिनट्स आपको 30 मिनट्स थोड़ा कंपटीशन वाला फील आ जाए वैसा। तो उसमें वहाँ पे फ़ायदा मिला, कॉम्पिटिशन में फिर आता है, अच्छा यार इसने आंसर दे दिया, मैंने आंसर नहीं दिया, ये ऐसा थोड़ा माइंड को बताने के लिए मतलब हाँ यार उसने किया, तेरे को भी करना है इसके साथ। हर तरीके की तो सिचुएशन के लिए मतलब मेरी कोशिश रहती है यस कि सर। ट्रेन हो हाँ, स्टूडेंट। सिली यस मिस्टेक्स के सर, लिए अलग डेफिनेटली। ट्रेन हो, कॉन्सेप्ट्स के लिए अलग हाँ ट्रेनिंग सर, हो, कॉम्पिटिटिव जो सर, एनवायरनमेंट की अलग ट्रेनिंग हो। हाँ, यस सर, एवरीथिंग वाज़ वेल प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें यस टेस्ट सर। में तुम्हारे मार्क्स कैसे आते थे? मार्क्स कितने आते थे? फ्लक्चुएशंस होता था क्या? और कैसे उससे कोप अप करते थे तुम अगर कम मार्क्स आ गए बाय चांस? हाँ सर, इसके लिए तो सर आपने एनालिसिस में बोला था एक लाइन कि अभी मिस्टेक हो रही है तो उससे डरना नहीं है, उससे सीखना है, ऐसा। मतलब आगे आगे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, बस। तो रिपीट उसी नहीं होना माइंडसेट से सर चाहिए। था। हाँ, रिपीट नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अगर सेम कॉन्सेप्ट का है तो होना ही चाहिए क्वेश्चन। सो आई वाज़ आई हैव डन दैट द टेस्ट सीरीज़ in I think I got for the first two FLTs, the marks was not good ओके, because the फर्स्ट 2 time एफएलटीज़ वर management डिफिकल्ट was। आल्सो। हाँ सर, मतलब उसमें ही टाइम मैनेजमेंट सीखा मैंने कि हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गया था अच्छे से करना। हाँ, तो फर्स्ट दो में टाइम मैनेजमेंट मैंने सीखा थोड़ा अच्छे से। ठीक है। फिर उसके बाद सर माय मार्क्स वाज अराउंड 70 75 लाइक दैट ओनली। और दैट्स प्रेशर इट। तुम्हें फील हो रहा होगा उस वक़्त जब गेट नहीं सर, आने वो वाला वाली होगा? चीज़। हाँ सर, हाँ सर, वो एक्चुअली में जब एफएलटीज देते थे और उसके जो एनालिसिस आपने बताया, उससे सर इतना क्लियर हो गया था माइंड की काम रहना है, पेशेंस रहना है। क्वेश्चन लाइक दैट लाइन व्हिच यू गिव व्हिच वाज़ अ गेम चेंजर फॉर मी, दैट क्वेश्चंस आर देयर टू हेल्प यू। ये लाइन सर मतलब दिमाग में चली गई थी कि हाँ, वो हेल्प करने के लिए है। सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। सो इन एग्जाम आल्सो आई वाज़ लाइक एमएसक्यू आएँगे, ये वो थोड़ा मतलब केओस हो गया था कि यार एमएसक्यू आएँगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बट फॉर दैट it went fine. बिल्कुल, There are no बिल्कुल। MSQs there, so क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्प के लिए ही हैं हमारी। उनकी अच्छी हाँ, उनको इज़्ज़त देनी है पूरी, पढ़ना है उसको हाँ, ठीक यस से, सर। तो हेल्प करेंगे। हाँ, अगर उसको इज़्ज़त यस नहीं सर। दोगे, तो वो दुश्मन बन जाएगा। हुँ, यस सर। फिर तो आपने बहुत वो ज़रूरी बताया है था ये जैसे कि माइंडसेट। हाँ, बोलो, बोलो। हाँ सर, कि क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करना है क्वेश्चन के साथ। लाइक फॉर बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन आल्सो स्पेंड टाइम विद इट। बिल्कुल। हाँ सर, तो वो चीज़ आपने सर कुछ क्वेश्चन में बताए, मतलब हम मैंने किया तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में वैसे करते गया जिसमें मेरे को लगता था मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन सामने रखता था, बस उसको बस सॉल्व करता था एक तरीके से, दूसरे तरीके से। आई सॉल्व लाइक दैट। किससे आंसर आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, वो पूरे नोट्स बनते जाते हैं। बाकी सर वही पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये बिलीव कर लो, मतलब जो मैंने किया बिलीव कि मतलब आपके इन इन लेक्चर जो आपके एडवाइसेस थे उससे,
जो क्वेश्चन आया है वो तुम्हारे पढ़ाए हुए से ही आया है, बाहर से नहीं आया है। तो भले बाहर से भी आया हो तो भी वो क्वेश्चन बन जाता था, ऐसा होता एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये था। माइंडसेट जरूरी है कि माइंड मुझे हाँ, आता है, मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, उसके मतलब बाद माइंड को कुछ बिलीव ऐसी चीज कराना अगर था। आ भी गई जो शायद पूरी तरह आती हो, बट आप सही कॉन्सेप्ट यूज हाँ, करके उसको सॉल्व करोगे अगर भरोसा रखोगे तो। हाँ, यस सर। बिल्कुल, तो ये जरूरी चीजें हैं समझने के लिए। हुँ, अच्छा लगा तुमसे बात करके, ओवरऑल तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी सुन के, और बाकी स्टूडेंट्स भी इसको यस सर। देखेंगे, कुछ सीखेंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर।